Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel. Here's a brief introduction about myself. I am a BTech graduate, and these are the subjects that I teach. So, if you would like to connect with me for a one on one or a group session, you may check out the description below. So, we are continuing with our Lucid Math series in which I have completed one of the chapter which is linear inequations, and we have just completed one of the video regarding the goods and services tax which is GST. This is the second video regarding GST. So if you are new, you don't know anything about GST, the concepts of GST, I would prefer that you first go to the first video and watch that video and complete your concept thoroughly and come back to this video. So moving on to our next question, which is the fourth question for this video, or we can say in this second video, we are starting off with the fourth question, as we have completed off with the three questions in the previous video. Now, what does this question states? This question states that the mark price of an article is rupees 35,000. All right. So this is the mark price. A dealer in Delhi sells the article to a consumer in the same city. This line, which comprises of the same city, is very much important to me. Why is it very much important? We will soon see this. Now, at a profit of 10%, he is selling this particular article to someone or to the consumer at a profit of 10%, and the rate of GST is given to me as this thing. अच्छा, हम लोग जीएसटी के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग जीएसटी के बारे में ये बात जानते हैं कि इवेंचुअली जो जीएसटी होता है, वो जीएसटी मार्क किया जाएगा किसके ऊपर या किसके ऊपर निकाला जाता है? सेलिंग प्राइस के ऊपर. सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस. So to finding out the selling price, what I will be doing over here, just the simple concept. यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है. So profit over here is nothing but 10% of the mark price, which is 3,500 rupees, which can be written as 10 upon 100 multiplied with 3,500. 0 and 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें मिल जाता है प्रॉफिट जो है दैट इज 350 रुपीज. नाउ व्हाट अबाउट द सेलिंग प्राइस? सो सेलिंग प्राइस इज वेरी मच नोन टू अस. दैट सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है कि हम लोग मार्क प्राइस में क्या करेंगे? प्रॉफिट को जस्ट सिंपली ऐड कर देंगे. सो इन दैट केस मार्क प्राइस इज 3,500. जस्ट ऐड दिस 350 टू इट, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? The total selling price is 3,850. Now, according to the question, यहां हम क्या बताए थे कि सेम सिटी का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है निकालने के लिए IGST, CGST, SGST. सो इवेंचुअली फर्स्टली अगर हम लोग लिखते हैं IGST, सो IGST यहां पे क्या होगा? रुपीज. कोई भी IGST यहाँ पे नहीं होगा. इसका रीजन क्या है? सेम सिटी का कंसेप्ट. सेम सिटी का कंसेप्ट कहने का मतलब जो हमारा ये सेल है, दैट इज सेल इज इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट के सेल्स में कभी भी IGST एप्लीकेबल नहीं होता है. नाउ व्हाट अबाउट द CGST एंड SGST? सो फॉर दिस थिंग हम लोग जानते हैं कि जो GST का रेट गिवन है वो हम लोग क्या करते हैं? इक्वली डिवाइड कर देते हैं. कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हमें CGST निकालना है तो द वैल्यू फॉर CGST इज सिंपली 6% ऑफ rupees 3,850. So this will be 6 upon 100 multiplied with 3,850. So over here 0 0 gets cancelled out. 5 2 times, and this will be 77 times, and this will be 2 3 times. So over here this will be rupees 231. What about the SGST? तो SGST भी बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा. दैट इज SGST will be equal to 6% of the total selling price, which is 3,850. तो यहाँ पे भी जब हम लोग कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो द आंसर विल बी सेम होंगे. तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज
फॉर द आर्टिकल। सो द अमाउंट जो हमारा जो कंज्यूमर है वो पे करेगा, दैट विल बी सिंपली what we have to do, we have to just add up these taxes to that thing। कहने का मतलब क्या हो गया कि the amount which consumer pays is simply 3,850 plus the SGST and plus the CGST। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं इट इज नथिंग बट 3850 प्लस 462। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे दिस विल बी 2, 6 and 5 will be 11, 1 gets carry, this will be 13 and this। So rupees 4,312 must be paid by the consumer as a whole। Now let us move on to our next question, which is this one. And over here in this question, the question is stating us that manufacturer A sells a washing machine. Over here, this must be capital A. All right, manufacturer A sells a washing machine to a dealer B. All right, for rupees 12,500. The dealer B sells it to a consumer at a profit of 1,500. All right, this is the profit. If the sales are, just a minute, there is another issue. If the sales are, this will be intrastate. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the amount of tax under GST paid by the dealer B to the central government। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले फोकस क्या करना पड़ेगा, हमें इस बात के बारे में फोकस करना है इवेंचुअली कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्वेश्चन बोला गया है हम लोग तो पहले उसे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द ऑप्शंस और द क्वेश्चंस सब पार्ट्स दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरर ए जो है वो वॉशिंग मशीन को बेच रहा है किसी एक डीलर को। तो पहला केस तो हमारा क्या चल रहा है, पहला केस हमारा यहाँ पे है कि देर इज अ मैन्युफैक्चरर विच इज स्टेटेड एज ए। ये एक वॉशिंग मशीन सेल कर रहा है, किसे सेल कर रहा है, एक डीलर बी को ना। अब जब ये काम ये कर रहा होगा तो तब भी उसके लिए भी तो रेट क्या रहा होगा, ये 12% रहा होगा जीएसटी का। तो इसके वक्त भी ये जो हमारा जीएसटी है ये क्या है, टोटल मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर ये जीएसटी क्या है, 12%। तो इवेंचुअली जब ये सामान डीलर बी को बेच रहा होगा तो कहने का मतलब क्या है, कहने का तो मतलब ये है कि उस मैन्युफैक्चरर को भी कोई ना कोई अमाउंट ऑफ जीएसटी तो पे करना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट केस के, दैट इज सी जीएसटी, तो हम लोग जानते हैं जीएसटी क्या होता है, आधा होता है। सो 6% ऑफ 12,500, जहां पे ये बन जाएगा 6/100 मल्टीप्लाइड विथ 12,500। जीरो एंड जीरो गेट्स कैंसिल ऑफ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग दिस बिकम्स 750। अच्छा, व्हाट अबाउट द एसजीएसटी, तो यहाँ पे जो हमारा एसजीएसटी होगा तो एसजीएसटी भी इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, दैट इज 6% ऑफ 12,500 और बिल्कुल सेम कैलकुलेशन से ये क्या आएगा, 750 रुपीज आएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये दोनों जीएसटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एज एन इनपुट जीएसटी भी कह सकते हैं। दिस इज द इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी से हमें ये पता चला कि इवेंचुअली जो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरर है वो करीब 750 करके ये सामान को बेचेगा। नाउ इसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा डीलर है वो डीलर किसी कंज्यूमर को सामान बेच रहा है। चलो इसे भी समझते हैं।
तो हम लोग कहेंगे जो हमारा डीलर बी है वो इस सामान को किसे बेच रहा है, एक कंज्यूमर को बेच रहा है। और जब वो ये कंज्यूमर को बेच रहा है तो याद रखना है कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 1500 रुपीज का। तो कहने का मतलब अगर वो 1500 का कर रहा है हमारा प्रॉफिट वाला थिंग, तो इवेंचुअली क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस, जिस अमाउंट में उसे कंज्यूमर को बेचा जा रहा है, दैट इज सिंपली नथिंग बट 12,500 प्लस 1500 टू इट। तो ये हो जाएगा हमारा 14,000। ठीक है। अब ये जो 14,000 है इस पे जीएसटी कौन पे करेगा, इस पे जीएसटी हमारा कंज्यूमर पे करेगा। बट वो कंज्यूमर जो पे करेगा, कलेक्ट करने का काम किसका है, डीलर का है। तो यहां पे जो हम लोग अभी सी जीएसटी निकालने जा रहे हैं वो असल में कंज्यूमर का है। सो सी जीएसटी ओवर हियर विल बी नथिंग बट 6% ऑफ 14,000। So over here this will be 6 upon 100 multiplied with 14,000। यहाँ से जीरो एंड जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से हमें मिलेगा 840। और बिल्कुल सिमिलर मैनर में एसजीएसटी भी फाइंड आउट किया जा सकता है, विच इज अगेन 6% ऑफ 14,000 रुपीज। सो दिस विल बी ऑल्सो 840। तो ये असल में क्या हुआ, ये असल में हम लोग इसे आउटपुट भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ये एग्जाम में ना भी लिखे तो भी चलेगा, बट बात ध्यान में ये रखना है कि हमेशा क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के सॉल्व करना है। तोड़ तोड़ के कहने का मतलब कि उसे समझना है, उसे समझ कर उसके बाद हमें सब काम करना है। अब ये काम यहां तक वैलिड था, मतलब जो हमें स्टेटमेंट गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग उस पूरे कैलकुलेशंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने पार्ट्स पे। पहला पार्ट हमें ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कितना देगा, तो हम लोग ये कहेंगे द इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैक्स विच द डीलर विल बी पेइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नथिंग बट द आउटपुट सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी एंड द इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हमारा जो पहला पार्ट होगा दैट इज अमाउंट ऑफ टैक्स paid by dealer B to central government is simply output GST, और कह सकते हैं हम लोग आउटपुट सी जीएसटी क्योंकि स्पेसिफिक मैनर में, माइनस द इनपुट सी जीएसटी। So the output CGST was 840 rupees and the input CGST is rupees 750। तो हम लोग कह सकते हैं जो डीलर को पे करना है दैट इज 90 रुपीज। आखिर ये हुआ कैसे, ये भी समझना जरूरी है। असल में हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हमें जीएसटी मिल रहा था, ये दे रहा था असल में हमारा डीलर बी, बट कलेक्ट करने का काम किसका था, मैन्युफैक्चरर का। तो ये पेमेंट डीलर बी किया था, और ये वाला जो पेमेंट है ये असल में कंज्यूमर किया। बट कंज्यूमर किसे पे किया, डीलर को पे किया। मतलब डीलर ये कलेक्शन कर रहा था। तो ये अमाउंट डीलर दे रहा है और ये अमाउंट डीलर ले रहा है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस बचेगा वही असल में सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है डीलर के तरफ से। देन द नेक्स्ट थिंग इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट मिलेगा उसके बारे में पहले पता लगाना है हमें। तो उसके बारे में पता लगाने से पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि इवेंचुअली स्टूडेंट्स लोग से इस पॉइंट पे जो गलती होता है, उन्हें लगता है कि जो डीलर बी का स्टेट गवर्नमेंट है सिर्फ उसे ही उतना ही अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। यहां पे बोला गया है रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे ये नहीं बताया गया कि कौन दे रहा है, डीलर का पूछा जा रहा है या मैन्युफैक्चरर का। तो इस केस में हम लोग दोनों को कंबाइन लेते हैं। कंबाइन का मैनर यहां पे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर का अमाउंट प्लस जो डीलर का एज अ होल होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी टू स्टेट गवर्नमेंट। सो इन दिस केस हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इट विल बी सिंपली द आउटपुट SGST minus the input SGST. So the output SGST was 840, the input SGST was 750. तो यहां से हमें क्या मिल गया? दिस इज 90 रुपीज। बट ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट रिसीव नहीं कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगा? देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये होगा जो पहला हमारा मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर रहा था, दैट इज 750, एंड देन दिस डिफरेंस। तो इवेंचुअली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे कितना जाएगा? 840 रुपीज। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें पूछ रहा है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। अब इसके लिए क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे द थर्ड वन इज अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होगा? सबसे पहला, जो उसका कॉस्ट था, मतलब जो कंज्यूमर जिस कॉस्ट में खरीदा मशीन, तो दैट इज द सेलिंग प्राइस विच इज 14,000 रुपीज। आफ्टर दैट वो CGST दिया था, तो CGST दिया था दैट इज 840 रुपीज, एंड देन वो SGST भी दिया था दैट इज 840 रुपीज। सो दिस विल बी 14,000 plus 1680. So the amount which will be paid by the consumer in total is 15,680 rupees. इस मैनर में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें बोला जा रहा है द शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल whose printed price is rupees 4,000. ओके, प्रिंटेड प्राइस भी हमारा किसके तरह काम करता है? बिल्कुल मार्क प्राइस के तरह। नाउ फ्रॉम अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ऑलराइट, ठीक है, ऐसा कुछ करके हो रहा है, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। ओके, प्रिंटेड प्राइस पे वो कंज्यूमर को उसे बेच दे रहा है। सेल्स कैसा टाइप का है? सेल्स के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब ये होता है कि उसमें IGST इन्वॉल्व कभी नहीं होगा, सिर्फ CGST एंड SGST ही इन्वॉल्व उसमें रहता है। एंड द रेट ऑफ GST इज 12%। फाइंड द प्राइस, बहुत कुछ हमें निकालने को बोला गया। अगेन स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप करते करते ही हमें आंसर्स मिलना शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमें क्वेश्चन में तो ये बात बताया गया है खास करके कि द शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल बाई कर रहा है, किससे? होलसेलर से। तो हम लोग अभी के लिए ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा होलसेलर है वो होलसेलर एक आइटम को बेच रहा है। किसे बेच रहा है? एक शॉपकीपर को बेच रहा है। और जब वो ये आइटम शॉपकीपर को बेच रहा है तो इस बारे में ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट वो अप्लाई कर रहा है दैट इज 20%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्काउंट प्राइस, कि इन टोटल असल में डिस्काउंट वो दिया कितना है। सो दैट विल बी 20% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस, मतलब प्रिंटेड प्राइस ही हमारा मार्क प्राइस के बराबर है। सो दिस विल बी 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड विथ 4,000। जीरो एंड जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? दिस इज अराउंड 800। पर ये 800 में शॉपकीपर को बेचा नहीं है। शॉपकीपर को किस अमाउंट में बेचा है? तो ये हमें बताएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस हमें क्या बताता है कि द प्रिंटेड प्राइस विच वॉज 400 माइनस द डिस्काउंट, तो ये जो हमें मिला है दैट इज रुपीज 3200। ये मेरा क्या है? असल में सेलिंग प्राइस है। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि जो भी GST अप्लाई होगा वो किस पे होगा? इस सेलिंग प्राइस पे होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसी वाले पोर्शन के लिए CGST SGST जो सब है वो सब निकालकर हम लोग एक तरफ रख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें CGST के बारे में,
तो टोटल जीएसटी वॉज 12%, तो सी जीएसटी क्या होगा, 6% हो जाएगा, किसका, ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अगर इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो दिस विल बी 6/100 मल्टीप्लाइड विथ 3200, जीरो एंड जीरो आपस में कैंसिल, तो यहां से हमें ये कितना मिल जाएगा, हमें यहां से ये मिल जाएगा 192 रुपीज। तो एसजीएसटी का भी कैलकुलेशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, दैट इज 6% ऑफ 3200। तो इसे भी सॉल्व करके हमें क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अच्छा चलो, ये पार्ट को हम लोग को सॉल्व करते हुए एक पोर्शन हमारा यहीं पे डायरेक्टली हो जाएगा। क्या है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव कहने का मतलब जीएसटी इन्वॉल्व करके, एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। सिंपल है, सेलिंग प्राइस में हम लोग इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमारा पहला पार्ट है, अमाउंट टू बी पेड बाय शॉपकीपर इज सिंपली 3200 प्लस 192 प्लस 192, जिसे सॉल्व करके ये अराउंड हो जाएगा 3584। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अच्छा, देन इसके बाद हमारा आता है कि अगेन ये शॉपकीपर एक कंज्यूमर को बेच रहा है किस पे, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि अगर यही चीज अब शॉपकीपर हमारा कंज्यूमर को बेच रहा है, तो वो किस पे बेच रहा है, प्रिंटेड प्राइस पे बेच रहा है। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म ये सब इस मैनर में एक आउटले बनाकर फायदा क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को सही तरीके से डिवाइड करने आ जाता है, कि कहीं पे कैलकुलेशन एरर या कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग भूल नहीं जाएंगे। अच्छा, इस पे आने से पहले हमें एक पार्ट नजर आ रहा है, दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो शॉपकीपर को पे करने के लिए अभी हम लोग जस्ट अपने पहले वाले ही क्वेश्चन में देखे थे कि आउटपुट माइनस इनपुट। तो हमारे पास तो चलो ये दोनों केसेस जो है वो तो इनपुट रिलेटेड है, तो हमें एक आउटपुट चाहिए। वो आउटपुट हमें कहां से मिलेगा, जितने पे वो कंज्यूमर को ये सब काम किया होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कंज्यूमर के केस में द सी जीएसटी विल बी 6% ऑफ प्रिंटेड प्राइस पे से बेचा था, प्रिंटेड प्राइस वॉज 4000, so this will be sorry, over here this will be 6 upon 100 multiplied with 4000, zero and zero आपस में cancel, this will be 240 rupees. Again, SGST is equals to 6% of 4000, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, 240 रुपीज। अब ये बारे में ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आया ये कैसा है, ये आउटपुट है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट हमसे पूछने का कोशिश कर रहा है, दैट इज अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम लोग से पूछा गया है। सो फॉर स्टेट गवर्नमेंट इट इज सिंपली, इनपुट जीएसटी हमारा कितना था, इनपुट जीएसटी हमारा 192 था, आउटपुट है 240, सो दिस विल बी 240 माइनस 192, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 40। ये हमारा क्या हो गया, ये अमाउंट जो शॉपकीपर है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, पे करेगा। देन बैक टू द क्वेश्चन, यहां पे हमसे पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग अलग से निकालेंगे, दैट इज अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। So in this case also हमें क्या देखने को मिलेगा, this will be 240 minus 192 which is simply 48 rupees। अब हमें क्या पूछा गया था, oh sorry a mistake from my side, this will be central government। okay, हम लोग से पूछा गया टोटल अमाउंट, सो टोटल अमाउंट
पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी, सबसे पहला जो हमारा होलसेलर कलेक्ट कर रहा था, होलसेलर कितना कलेक्ट कर रहा था, दैट वाज 192। उस 192 में हम लोग क्या करेंगे, 48 को ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी सिंपली 240 रुपीज, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे, विच इज द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। सिंपल है, सेलिंग प्राइस प्लस वो जितना जीएसटी पे कर रहा है इन टोटल। सो द फोर्थ वन इज अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज सिंपली सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस वाज 4000, देन सीजीएसटी कितना था, दैट वाज 240, एसजीएसटी कितना था, दैट वाज 240। अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4480। तो हर एक क्वेश्चन आपस में क्या है, लिंक्ड अप है। तो हमें बस क्या करना है, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलना है, तो हमारा हर एक आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद भी हमारा क्वेश्चंस बाकी है इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, अ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहले पता चला कि अच्छा कोई एक रिटेलर करके है, रिटेलर बाई कर रहा है किससे, एक मैन्युफैक्चरर से बाई कर रहा है फॉर रुपीज 25,000 ऑनलाइन। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। मतलब जब वो किसी और को अब बेचने वाला रहेगा, तो वो जिस दाम पे खरीदा था, दैट वाज हिज कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या करेगा, उसे 20% बढ़ाकर बेचेगा। एंड क्या करने वाला है, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अच्छा, ये मार्क प्राइस कौन सा है, जो हम लोग ये 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो यहां से हमें क्या ऑप्टेन होगा, हमें यहां से मार्क प्राइस ऑप्टेन होगा। एंड इफ द सेल्स आर, अगेन क्या बोला जा रहा है, इंट्रास्टेट, तो यहाँ पे आईजीएसटी का कोई भी मतलब नहीं बनता। एंड द जस्ट अ मिनट, एंड over here, and the rate, this will be rate only, and the rate of GST is 12%। फाइंड, हमें अलग अलग चीज यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला गया है। सबसे पहले मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस ऑफ द टीवी यहां तक करने के बाद ही बनेगा, ठीक है। फिर कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव एंड जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमें ये निकालना है, तो पहले नॉर्मल वे में इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग जैसे हम लोग करते हुए आ रहे क्वेश्चन, बिल्कुल उसी मैनर में हम लोग करेंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चरर से काम नहीं है, हमें जो ज़रूरत है वो क्या है, हमारा जो रिटेलर है, वो रिटेलर इसे क्या करने वाला है, कंज्यूमर को बेचने वाला है। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा द थिंग विच इज अमाउंट अबव कॉस्ट प्राइस, वो कितना ज्यादा अमाउंट बना रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 20% ऑफ रुपीज 25,000। सो इन दिस मैनर दिस विल बी 20/100 मल्टीप्लाइड विथ 25,000। जीरो एंड जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा अराउंड 5,000 रुपीज। अब इस 5,000 को अगर हम लोग ऐड कर दें जिस अमाउंट पे वो मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, तो इवेंचुअली वो मार्क प्राइस बन जाएगा। तो हमारा पहला पार्ट जो है, दैट इज द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज सिंपली द कॉस्ट प्राइस प्लस द रेज्ड अप प्राइस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 रुपीज। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। अब हमें पूछा जा रहा है कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कहने का मतलब इवेंचुअली जितना वो अमाउंट रिटेलर को देने वाला है, जितने में वो सब कुछ खरीदा होगा। तो अब बस इसे हम लोग को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। सबसे पहले सी जीएसटी पेड
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा कि क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस में बेचा गया था। सो द सेलिंग प्राइस ओवर हियर will be the mark price minus the discounted price। अब डिस्काउंटेड प्राइस को निकालने के लिए कैलकुलेशन हम साइड बाय साइड कर दे रहे हैं, अलग भी किया जा सकता है। सो ओवर हियर द डिस्काउंट वाज 10%, तो हम लोग कह सकते हैं 10/100 मल्टीप्लाइड विथ 30,000। सो यहाँ से ये हमें क्या मिला, 30,000 माइनस 3,000, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज 27,000। अब इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर हमें CGST निकालना है। CGST पेड बाय कंज्यूमर। तो हमारा रेट ऑफ जीएसटी क्या है क्वेश्चन में, हमारा रेट ऑफ जीएसटी जो क्वेश्चन में है दैट इज 12%। सो इन दैट केस ये बन जाएगा 6% ऑफ 27,000। सो दिस विल बी 6/100 मल्टीप्लाइड विथ 27,000। तो यहां से ये सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 1620। बिल्कुल उसी मैनर में SGST पेड बाय द कंज्यूमर, तो ये भी हमारा कैलकुलेशन सेम होगा, दैट इज 6% ऑफ 27,000 रुपीज। तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, 1620। अब कंज्यूमर कितना पे करने वाला है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन inclusive of tax is simply the selling price, which was 27,000, the CGST, which is 1620, and the SGST, which is also similar। तो इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 30,240। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है GST पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा ना, स्टूडेंट्स लोग से जल्दी जल्दी में गलती ये हो जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि रिटेलर भी तो होलसेलर से ये सामान को खरीदा था। तो हमें सबसे पहले तो इनपुट जीएसटी के बारे में पता लगाना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्या था, होलसेलर से रिटेलर वाला कंडीशन चल रहा था, वहां पे ये होलसेलर उसे कितने अमाउंट में बेचा था, वो बेचा था 25,000 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमें इनपुट CGST निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 6% ऑफ अगेन 25,000। सो दिस विल बी 6/100 मल्टीप्लाइड विथ 25,000। जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 1,500 रुपीज। बिल्कुल उसी मैनर में अगर हम लोग इनपुट SGST निकालें तो कैलकुलेशन हमारा सेम रहेगा, दैट इज 6% ऑफ रुपीज 25,000। So this will be also 1,500 rupees। तो अब अगर हमें निकालना है GST पेड बाय द रिटेलर, GST पेड बाय द retailer to central government, so in that case it will be the GST which was paid by the consumer, which is 1,620, minus again what we have to do, we have to subtract 1,500 over here। तो यहां से हमें ये कितना मिल गया, यहां से हमें मिल गया 120 रुपीज। अगेन बिल्कुल सेम मैनर में GST पेड बाय द रिटेलर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 1,620 माइनस 1,500 विच विल बी ₹120। अब अगर कोई स्टूडेंट इस पॉइंट पर आकर इस आंसर को छोड़ देता है तो भी उसे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में बोला गया है द GST पेड, ये GST वर्ड बोला गया है, नॉट CGST और नॉट SGST। तो इसके कहने का मतलब ये हमसे टोटल GST पूछना चाह रहे हैं।
तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? तो हमारा फाइनल आंसर होगा टोटल जीएसटी पेड by the retailer is simply 120 plus 120, which is simply 240 rupees. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बस इतना ही। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किए, कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करके हमें सॉल्व करना है और कैसे ये जीएसटी का कंसेप्ट चलता है। इवेंचुअली जो बीच का केस है, बीच का केस कहने का मतलब कि अगर हमें तीन कंडीशन है, दैट इज होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर, शॉपकीपर और कंज्यूमर, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी बीच वाले इंसान के बारे में, मतलब जो हमारा शॉपकीपर है, जो हमारा रिटेलर है, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि जो जीएसटी वो पे करेगा उसमें सबसे पहले तो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का कंसेप्ट रहेगा। तो इस बारे में ध्यान रखना है। And do like this particular video and do comment so that it can reach a better number of audience, so that it might be helpful for them also. And do subscribe to my channel, and we will meet up with some new more videos regarding this GST and other concepts also. Thank you very much for watching this video.